Hi and welcome to Speak Up India. Thank you so much for connecting. I am Sunil Jha. The judgment in Sushant Singh Rajput case, that is the one where the sisters had filed and challenged the FIR filed by Rhea Chakravarti before the Bombay High Court, is out. And I have a copy of that. And I thought it's better that I come and tell you exactly what the detailed order states. Now, this is the order that has been passed by a division bench of Justice M.S. Karnik and Justice S.S. Shinde yesterday, and that detailed order is now with me. And I will just read out the basic important points, which are the grounds for what the High Court said. Now, you know what the High Court said yesterday. The High Court quashed the FIR against Meetu Singh, but ordered investigation against Priyanka Singh and the RML doctor. Now, here's what the main points of this orders are. This order, which is the judgment, is about 43 pages judgment, this is, which has been given by the division bench of Justice M.S. Karnik and Justice S.S. Shinde, and that details, पूरे डिटेल में बताता है कि क्या वो ग्राउंड्स हैं, क्या वो रीजंस हैं जिसके कारण ये ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया है कि जो केस है, जो एफआईआर फाइल किया है रिया चक्रवर्ती ने अगेंस्ट प्रियंका सिंह एंड मीतू सिंह, उसमें से मीतू सिंह का नाम तो ड्रॉप कर दिया, लेकिन प्रियंका सिंह को लेकर हाई कोर्ट ने काफी कुछ कहा है और ये कहा है कि उनके अगेंस्ट में जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई को करना चाहिए. तो आखिर इस ऑर्डर में क्या क्या है मैं डिटेल बता दूं, क्योंकि हमारे पास कल जो ऑर्डर आया था सिर्फ 2 लाइन या 3 लाइन ऑपरेटिव मिले थे, लेकिन अब मेरे पास ये पूरा ऑर्डर है. एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ यू, let's go through the order first, and then whatever you think, you can come and speak up. First, the order. I'm just pointing out the basic important pointers. Now, please listen to this carefully, because बाद में मैं आपको इसका basic बता दूंगा, but this order, the judgment is in English, and I'll be reading all of that in English. बाद में अगर किसी को जो मुझे important लगेगा मैं उसको translate कर दूंगा, और अदरवाइज आप सब लोग आ सकते हैं, उसके बाद उस पर बात कर सकते हैं. तो पॉइंट नंबर 22 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं. ये वर्डिक्ट में जो 2 पार्ट में वर्डिक्ट है, उसमें एक आर्ग्यूमेंट जो दिया है लॉयर्स ने वो है, और दूसरा पार्ट है जो चीज कोर्ट ने कंसिडर किया, द कंसिडरेशंस बिफोर द कोर्ट. और उसमें जो पॉइंट नंबर 22 है वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और दिस गोज टू पॉइंट नंबर 43. सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है दैट आई एम पिकिंग. सो इन पॉइंट नंबर 22 द जजेस से, heard learned advocates appearing for the respective parties at length, we have perused the copy of the petition. The complainant, that is the 2 sisters complainant, both Priyanka Singh and Meetu Singh, इसमें 3 respondents है. Let me clarify that कि जहां respondents आ रहा है, respondent number 1, respondent number 2, respondent number 3, please note down, क्योंकि verdict में respondents का जिक्र होता है, हर बार शायद मैं नाम मिस कर जाऊं, तो आप नोट कर लीजिए कि respondents कौन है और इसमें पार्टीज कौन कौन है. तो ये पिटीशन फाइल किया है मीतू सिंह और प्रियंका सिंह ने. एप्लीकेंट नंबर 1 प्रियंका सिंह है और एप्लीकेंट नंबर 2 मीतू सिंह है. यानी कंप्लेनेंट नंबर 1 प्रियंका सिंह है, कंप्लेनेंट नंबर 2 मीतू सिंह है. जो रिस्पोंडेंट्स हैं इनमें 3 है. रिस्पोंडेंट नंबर 1 मुंबई पुलिस है, रिस्पोंडेंट नंबर 2 रिया चक्रवर्ती है, और रिस्पोंडेंट नंबर 3 सीबीआई है. So number 1, respondent number 1 का जहां जिक्र आएगा, please consider that as Mumbai Police. Respondent number 2 का जिक्र आएगा, that will be Rhea Chakravarti, and respondent number 3 का जहां भी जिक्र आएगा, that will be CBI. So these are the basic points on which I will just highlight, और आप लोग उसके बाद आकर आप लोग बात कर सकते हैं. So point number 22, heard learned advocates appearing for the respective parties at length. We have perused the copy of the petition, the complaint made by the respondent number 2, that's Rhea Chakrabarti, pertaining to counterclaim in respect of same incident, having different versions of events on the basis of FIR which came to be registered and the documents annexed to the petition. यानी basically we have जितने भी लॉयर्स थे हमने सबको उनको सुना है. उसके बाद जो एलिगेशन लगाया है रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी रिया चक्रवर्ती ने, उनके कंप्लेंट को देखा है, और उसमें 2 अलग अलग पिटीशंस फाइल हुए हैं, 2 अलग अलग कंप्लेंट हैं. एक कंप्लेंट वो है जो
सुशांत सिंह राजपूत के फादर के सिंह ने फाइल किया, और उसके अगेंस्ट में काउंटर कंप्लेन है जो रिया चक्रवर्ती ने फाइल किया है. हमने दोनों ही कंप्लेन को देखा है, एंड देन वी आर डिटेलिंग आउट. Point number 23, the present matter pertains to the tragic incident in which the Bollywood actor Sushant Singh Rajput, aged 34 years, was found dead at his residence in Mumbai. Point number 24, the complaint is filed by the respondent number 2, Riya Chakravarti, contending that the accused persons conspired with each other and illegally procured false prescription on the letterhead of a government hospital which contained psychotropic substance clonazepam, 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 and chlorodiazepoxide, which are listed as item number 36 and 38 of the schedule of NDPS Act and administered the same to late actor Sushant Singh Rajput. तो जो कोर्ट के सामने जो कंसिडरेशन के लिए था वो ये रिया चक्रवर्ती का वो कंप्लेन जो उन्होंने मीतू सिंह और प्रियंका सिंह के खिलाफ फाइल किया और डॉक्टर तरुण कुमार के अगेंस्ट में फाइल किया जो आरएमएल के डॉक्टर हैं, जिसमें कहा गया कि तीनों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की टू चेंज द मेडिसिन एंड गिव सुशांत सिंह राजपूत सर्टेन मेडिसिन विच आर बैंड अंडर द एनडीपीएस एक्ट. जो मेडिसिन बैंड है, दो मेडिसिन का यहां दो सब्सटेंस का जिक्र किया गया है, क्लोनाजेपम और क्लोरोडाइजेपॉक्साइड. ये दो चीजें हैं जो लिस्टेड हैं एनडीपीएस एक्ट में एज बैंड सब्सटेंस, यानी ये चीजें आप नहीं प्रेस्क्राइब कर सकते क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है. पॉइंट नंबर 25, we firstly we deal with the submission of learned senior advocate for the petitioners, that is प्रियंका सिंह एंड मीतू सिंह. उनके जो लॉयर हैं विकास सिंह, पहले उन्होंने जो सबमिशंस दिया कोर्ट ने पहले उसको कंसीडर किया. उसमें यह कहा गया दैट रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो मुंबई पुलिस है हैज नो jurisdiction to register second FIR in view of the fact that the earlier FIR number 241 of 2020 registered by Patna Police transferred to CBI was being investigated by the CBI under the direction of the Supreme Court of India. It appears that respondent registered the FIR pertaining to the counter complaint in respect of same incident having a different version of events, which according to us is permissible. We have gone through the order dated 19/8/2020 passed by the Supreme Court. A reference to paragraph 36 and 41 is necessary where their lordship observe. यहाँ पे सुप्रीम बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जो प्रियंका सिंह और मीतू सिंह के लॉयर हैं विकास सिंह, उनके मुताबिक ये जुरिस्डिक्शन बॉम्बे पुलिस का था ही नहीं. बॉम्बे पुलिस को ये एफआईआर रजिस्टर करना ही नहीं चाहिए था जो रिया चक्रवर्ती ने फाइल किया. उसका रीजन ये था कि एक ही मैटर में दो एफआईआर नहीं हो सकते, एक ही केस में दो तरह के एफआईआर नहीं हो सकते, और एक केस का एक एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रहा था विच इज एफआईआर नंबर 241 ऑफ 2020, और ये केस इन्वेस्टिगेट सीबीआई कर रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और इसीलिए ये जुरिस्डिक्शन का परमिशन मुंबई पुलिस के पास नहीं था. मुंबई पुलिस को ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, ये परमिसिबल नहीं है. कोर्ट ने कहा हमें ऐसा नहीं लगता, अकॉर्डिंग टू अस इट इज परमिसिबल. वी हैव गॉन थ्रू द ऑर्डर डेटेड 19/8/2020. तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 19/8 यानी अगस्त 19 जो लास्ट ईयर था, जो रिया चक्रवर्ती के पिटीशन पे जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसको हाई कोर्ट ने कोट किया, और उसमें जो कुछ कहा वो ये, उन्होंने पैराग्राफ 36 और पैराग्राफ 41 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो लास्ट ईयर अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था जब ये केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ था, उसका रेफरेंस दिया ये बताने के लिए कि क्यों मुंबई पुलिस इज राइट इन रजिस्टरिंग द एफआईआर. विकास सिंह ने कहा था मुंबई पुलिस इज रॉन्ग, सीबीआई ने कहा मुंबई पुलिस इज रॉन्ग, बट हाई कोर्ट ने कहा मुंबई पुलिस इज राइट इन रजिस्टरिंग द एफआईआर एंड देन इमीडिएटली ट्रांसफरिंग इट टू सीबीआई. क्यों? उसका रीजन कहा उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर लास्ट ईयर आया था उसका पैराग्राफ 36 और 41 पढ़िए. तो उस 36 पैराग्राफ और 41 में क्या कहा गया वो उन्होंने ऑर्डर में कोट किया. पैराग्राफ 36 कहता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर
वही ऑर्डर जिससे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ. द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन बाय द सीबीआई इज हेल्ड टू बी लॉफुल. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन बाय द सीबीआई इज हेल्ड टू बी लॉफुल in the event, this is very important, in the event of a new case is registered at Mumbai on the same issue, in the fitness of things, it would be appropriate if the latter case too gets investigated by the same agency on the strength of this court's order. Such enabling order will make it possible for CBI to investigate the new case, avoiding the rigors of Section 6 of DSPE Act, Delhi State Police Establishment Act, I think, Delhi State Police Establishment Act, requiring consent from the state of Maharashtra. तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था पैरा 36 में, वो ये कहा था कि कोई भी केस अगर, क्योंकि अब ये केस सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो कोई भी और केस मुंबई में अगर रजिस्टर होता है तो वो केस भी सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए और सीबीआई को ही वो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. ये बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को कोट करके कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो जो विकास सिंह ने कहा कि मुंबई पुलिस को राइट नहीं है, वो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि मुंबई पुलिस को राइट नहीं है, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि ये राइट है, अगर कोई केस रजिस्टर होता है तो वो ट्रांसफर होना चाहिए. दूसरा पॉइंट नंबर 41 सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर का हिस्सा है, पैराग्राफ 41, जिसमें लिखा हुआ है देयरफॉर व्हाइल अकॉर्डिंग अप्रूवल फॉर द ऑनगोइंग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इफ एनी अदर केस रजिस्टर्ड ऑन द डेथ ऑफ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत and the surrounding circumstances of his unnatural death, the CBI is directed to investigate the new case as well. It is ordered accordingly. अगर कोई भी केस सुशांत सिंह राजपूत के डेथ से रिलेटेड रजिस्टर होता है तो वो सीबीआई ही इन्वेस्टिगेट करेगी. इन दोनों ऑर्डर के बेसिस पे हाई कोर्ट ने कंक्लूड किया कि विकास सिंह जो कह रहे हैं गलत है. अगर मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती की एफआईआर रजिस्टर किया कंप्लेन पर तो वो सही था, क्योंकि उन्होंने अगले ही दिन वो केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया. पैराग्राफ 26 जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है. नाउ सुप्रीम कोर्ट पार्ट इज ओवर. हाई कोर्ट के वर्डिक्ट पे वापस आते हैं. हाई कोर्ट के जजमेंट में पैराग्राफ 26 जो है वो ये कहता है, इट इज नॉट इन डिस्प्यूट दैट परसुएंट टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर ऑन 7/9/2020 यानी 7 सितंबर 2020 को जो एफआईआर रिया चक्रवर्ती ने रजिस्टर किया, उसके बाद मुंबई पुलिस ने उसको तुरंत अगले दिन यानी 8 तारीख को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था. This is exactly what was ordered by the Supreme Court, और मुंबई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ही ये एक्शन लिया. The respondent number 1 being satisfied with the information in the complaint disclosed the commission of the cognizable offences, registered the FIR as mandated by the provisions of section 154 of CRPC and in view of exposition of law in the case of Bhajan Lal. उन्होंने रेफरेंस दिया भजनलाल केस का और कहा कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी मुंबई पुलिस ने जब वो सेटिस्फाई हो गई कि ये इंफॉर्मेशन जो रिया चक्रवर्ती दे रही हैं वो सही है, उन्होंने वो एफआईआर रजिस्टर किया और एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया. पैराग्राफ 27 सेज इट इज देन द कंटेंशन ऑफ सीनियर एडवोकेट दैट इज विकास सिंह फॉर द पिटिशनर विकास सिंह दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सेकंड एफआईआर is not permissible in view of the decision of the Supreme Court of India in the case of T.T. Antony and versus State of Kerala. So far as said contention is concerned, यानी विकास सिंह ने एक और एग्जाम्पल दिया था, कहा था कि ये एफआईआर रजिस्टर करना जो टीटी एंटनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का ऑर्डर है उसके अंडर भी परमिसिबल नहीं है. उस पर हाईकोर्ट ने कहा कि so far as the said contention is concerned, we find from the subsequent decision by the larger bench of Supreme Court in Upkar Singh versus Ved Prakash 13 that the filing of counter complaint is permissible. हाईकोर्ट ने कहा कि उसी ऑर्डर के बाद एक और ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का जो उससे हायर बेंच का था, जिसने ऐसा करना परमिसिबल कर दिया. इसीलिए हमको लगता है जो एफआईआर मुंबई पुलिस ने फाइल किया वो सही है. इन द एफआईआर फाइल्ड बाय द फादर ऑफ द पिटिशनर्स
हाईकोर्ट के वर्डिक्ट में आगे कहा है, इन द एफआईआर फाइल्ड बाय द फादर ऑफ द पिटिशनर्स, यानी मीतू सिंह और प्रियंका सिंह के फादर के सिंह, सुशांत सिंह के फादर के सिंह, द रिस्पोंडेंट नंबर 2 इज द मेन एक्यूज, रिया चक्रवर्ती इज द मेन एक्यूज. द कंप्लेंट मेड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 2 on the basis of which the present FIR came to be filed alleges a different version of the said incident. Thus, there are rival versions in respect of the same incident. In our opinion, पहले तो मैं वो बता दूं कि क्या कह रहे हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि एक कंप्लेंट फाइल किया सुशांत सिंह राजपूत के फादर के सिंह ने अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती, नेमिंग हर एज द मेन एक्यूज. काउंटर कंप्लेन रिया चक्रवर्ती ने फाइल किया ऑन द बेसिस ऑफ विच एक एफआईआर रजिस्टर किया मुंबई पुलिस ने, एलिजिंग, उन्होंने जो एलिगेशन लगाया वो बिल्कुल डिफरेंट वर्जन था. वो उसका ऑपोजिट वर्जन था कि दोनों बहनों ने मिलकर डॉक्टर के साथ सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को एबिट कर दिया. तो हाईकोर्ट ने कहा दैट इन आवर ओपिनियन, इन व्यू ऑफ द लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ उपकार सिंह, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर दैट इज काउंटर कंप्लेंट एट द इंस्टेंस ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 2 इज नॉट प्रोहिबिटेड. और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये प्रोहिबिटेड नहीं है. हम ये ऐसा ऑर्डर किया जा सकता है. मुंबई पुलिस ने गलत नहीं किया. दो पार्ट है इस वर्डिक्ट का. एक पार्ट है जो मुंबई पुलिस, सीबीआई और बिहार पुलिस और फैमिली से रिलेटेड है. दूसरा पार्ट है रिया चक्रवर्ती, प्रियंका सिंह और नीतू से रिलेटेड है. पहला पार्ट में मुंबई पुलिस ने एफआईआर फाइल किया, वो सही था या गलत था, इस पर हाईकोर्ट ने कहा. बाद में दे केम टू मीतू सिंह एंड प्रियंका सिंह. पहले मुंबई पुलिस वाला बात हो रहा है, इसलिए मैं पहले उसका जिक्र कर. Further, the High Court said that Honorable Supreme Court has laid down that any further complaint by the same complainant against the same accused subsequent to the registration of case is prohibited under the CRPC, because an investigation in this regard would have already started, and further the complaint against the same accused will amount to an improvement in the facts mentioned in the criminal complaint, hence will be prohibited under section 162. High Court ये कह रहा है कि अगर सेम कंप्लेनेंट एक नया एफआईआर फाइल करता है, यानी इन दिस केस अगर के सिंह ने एक और एफआईआर फाइल किया होता, वो उस पर इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है नए वाले एफआईआर में वो कुछ और नई चीजें जोड़ देते. उसी तरह अगर रिया चक्रवर्ती ने फाइल किया तो रिया चक्रवर्ती अगर एक और फाइल करेंगी तो वो परमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो फैक्ट्स को चेंज कर सकती है. इसीलिए जो एक एफआईआर फाइल हो गया और उस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया तो फिर दोबारा सेम पॉइंट पर एफआईआर फाइल नहीं होगा. लेकिन क्योंकि रिया चक्रवर्ती काउंटर फाइल कर रही थी एफआईआर जो अलग पॉइंट पे था, इसीलिए वो परमिसिबल. प्रेजेंट पिटिशनर्स आर नॉट एक्यूज्ड इन द फर्स्ट एफआईआर. प्रेजेंट पिटिशनर मतलब प्रियंका सिंह एंड मीतू सिंह एंड द डॉक्टर तरुण कुमार are not accused in the FIR, first FIR of KK Singh. And respondent number 2 has filed the second FIR, that is Riya Chakravarti has filed the second FIR in the nature of counter complaint in respect of the same incident, having a different version of events which is legally permissible. यानी रिया चक्रवर्ती क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट फाइल कर रही है कंप्लेंट और वो अलग फैक्ट्स हैं, इसलिए परमिसिबल है. We therefore do not find substance in the contention of Vikas Singh, senior advocate Vikas Singh, for the petitioners that the second FIR is not permissible. यानी हाईकोर्ट ने बोला विकास सिंह का स्टैंड हम नहीं मानते कि मुंबई पुलिस ऐसा एफआईआर रजिस्टर ही नहीं कर सकती. 28, para 28. Let us examine the contention of senior advocate for the petitioners that the FIR against the doctor is not maintainable in view of the law laid down by the Honorable Supreme Court in the case of Jacob Matthew versus State of Punjab. एक पॉइंट था जो विकास सिंह ने मेंशन किया रिगार्डिंग द सिस्टर्स, और दूसरा पॉइंट जो मेंशन किया वो था रिगार्डिंग द डॉक्टर, और उस पर हाई कोर्ट इज कमिंग टू दैट कि अब डॉक्टर को लेकर क्या है वो भी देख लेते हैं. तो हाईकोर्ट ने जिक्र किया जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, और उसमें कहा देयर लॉर्डशिप्स वर कंसीडरिंग अ केस ऑफ. ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके रेफरेंसेस अभी आने वाले हैं. जब भी फैमिली सुप्रीम कोर्ट जाएगी इसी जजमेंट की बात होगी. तो अगर आप लोग इसके पॉइंट्स मिस कर जाएंगे तो फिर उस दिन दोबारा हमको ये बैठकर फिर देखना पड़ेगा कि इस जजमेंट में क्या है. इसलिए इसको ध्यान से सुनिए सो दैट यू रिमेंबर इट, और जब उस वक्त बात होगी तो मे बी मैं ही आप लोग बोलूंगा, अगर आपको याद है तो बताइए. तो इसलिए लिसन टू दिस जजमेंट केयरफुली ताकि आप लोगों के लिए रेफरेंस पॉइंट होगा, एंड देन यू कैन आल्सो कम एंड स्पीक
on what you think is right and what you think is wrong. But we can only comment on the judgment. We can't comment personally on the judges. Be very clear, because I've already put a post. I'm just advising again. Let us examine the contention of senior advocate for the petitioners that the FIR against the doctor is not maintainable in view of the law laid down by the Supreme Court. In that case, their lordship were considering a case of medical negligence, और वो केस बिल्कुल अलग था, और इस केस में ये केस बिल्कुल अलग है, और उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद परमिसिबल नहीं था, लेकिन इस केस में परमिसिबल क्यों है, उसका रीजन ये है, उसमें बहुत सारे डिटेल्स भी दिए हाईकोर्ट ने, जो हमारे पास नहीं थे. सो लिसन टू दिस. It is further alleged that the OPD registration card of Sushant Singh Rajput, dated 8/6/2020, सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो ओपीडी कार्ड आरएमएल हॉस्पिटल से इशू हुआ था, वो 8 जून 2020 को इशू हुआ था. 11:16:37, 11:16:37 पे ये ओपीडी कार्ड रजिस्टर हुआ है, और ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में रजिस्टर हुआ है इन द नेम ऑफ पेशेंट सुशांत सिंह राजपूत, एजेड 34 years, shown in room number 6 Q81. The said OPD card reveals that Dr. Tarun Kumar, the associate professor cardiology, has purportedly examined actor Sushant Singh Rajput in room number 6 at the said hospital in Delhi, and diagnosed him with anxiety and prescribed him the following medicines. कौन-कौन से medicine? 14 following medicines. One is Nexitor, second is Librium, and third is Lonazep. ये 3 medicine prescribe किए गए on the basis of the consultation that happened between Sushant Singh Rajput and Dr. Tarun Kumar in room number 6, patient number 81, on June 8th, 2020 at 11:16:37. 11:16:37 पर उन्होंने एग्जामिन किया सुशांत सिंह राजपूत का एज पर द ओपीडी कार्ड. Considering the allegations that there was not even an online consultation with doctor and the prescription is fabricated, it is not possible to hold the complaint as not maintainable. Applying the ratio of Jacob Matthew, we therefore do not find favor with the submissions made by senior advocate Vikas Singh for the petitioner on this aspect when the investigation is at a preliminary stage. हाई कोर्ट ने ये भी रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि अगर कोई कंसल्टेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि ऑनलाइन कंसल्टेशन की तो ये बात ही नहीं हो रही है, तो हाई कोर्ट के मुताबिक ये ओपीडी कार्ड बताता है कि सुशांत सिंह राजपूत वाज देयर इन दिल्ली at 11:17:37 in room number 6, patient number 81 at the RML hospital, और उस दौरान जो एग्जामिनेशन किया डॉक्टर ने उसके मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत वाज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, और उनके लिए उनको 3 मेडिसिन दिए गए, नेक्सिटोर, लिब्रियम और लोनाजेप. और ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत तो दिल्ली में था ही नहीं, वो तो मुंबई में था, तो फिर ये फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे हुआ और ये प्रिस्क्रिप्शन कैसे दिया. तो हम इस बात से एग्री नहीं करते कि इसमें एट दिस स्टेज जब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है हमको इंटरफेयर करने की जरूरत है. उस ग्राउंड पे उन्होंने वो भी रिजेक्ट कर दिया, यानी डॉक्टर के अगेंस्ट में भी ये कार्रवाई की जा सकती है और इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है. नाउ पैरा 29. We now deal with the submission of learned senior advocate for the petitioner, that is Meetu Singh and Priyanka Singh, that where the allegations were made in the FIR or the complaint, even if they are taken at the face value and accepted in their entirety, do not prima facie constitute any offense or make out a case against the accused. Before we deal with this aspect, it would be pertinent to examine the principle of law enunciated by the court relating to the exercise of extraordinary power under Article 226 or the inherent powers under Section 482 of the CRPC in the matter of quashing of FIR or complaint. विकास सिंह का कहना था कि ये पिटीशन को क्वॉश करने का हक हाई कोर्ट को है, मतलब ये FIR को क्वॉश करने का हाई कोर्ट को है,
और हाईकोर्ट को प्राइमा फेसाई इस एफआईआर को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। ये प्राइमा फेसाई एफआईआर स्टैंड ही नहीं करता है। उसका रीजन ये है कि कोई ऑफेंस ही नहीं बना है। मीतू सिंह और प्रियंका सिंह ने कोई ऑफेंस किया ही नहीं है, तो फिर प्राइमा फेसाई ये एफआईआर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए इसको क्वॉश कर देना चाहिए। तो हाईकोर्ट ने कहा कि द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल एंड अदर्स in the backdrop of the interpretation of various relevant sections and the orders relating to the exercise of extraordinary power under Article 226 or the inherent powers under Section 482 of the Code, gave the following categories of cases by way of illustration wherein such power could be exercised either to prevent abuse of the process of any court or otherwise to secure the ends of justice. Their lordships observed, मैं अभी बता दूंगा, don't worry. Their lordships observed that it may not be possible to lay down any precise, clearly defined, and sufficiently channelized and inflexible guidelines or rigid formulate and to give an exhaustive list of myriad kinds of cases wherein such power should be exercised. हाईकोर्ट के मुताबिक ऐसी कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है किस केस में ऐसा क्वॉशिंग का पावर है, किसमें नहीं है। और आगे उन्होंने बोला तो इसलिए वो 29 वाला जो है वो रेफरेंस के लिए है, उसको ज्यादा हमको स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे उतना प्रैक्टिकली हमसे उतना ज्यादा हम लोग के रेलेवेंस के लिए नहीं है, वो कोर्ट और लॉयर के बीच का है, इसलिए मैंने सिर्फ जल्दी पढ़ दिया। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, 30 है पैरा। वी मे ऑल्सो रेफर टू पैराग्राफ 103 इन भजन लाल केस। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट देयर इज अ नीड टू बी कॉशियस, there is a need to be cautious to the effect that the power of quashing a criminal proceeding should be exercised very sparingly and with circumspection, that too in the rarest of rare cases, that the court will not be justified in embarking upon an inquiry as to the reliability or genuineness or otherwise of the allegations made in the file. Basic बात जो कोर्ट कह रही है वो ये, हाईकोर्ट का कहना था कि विकास सिंह का सबमिशन ये था कि क्योंकि कोई ऑफेंस ही नहीं किया दोनों बहनों ने, तो फिर ये एफआईआर मेंटेनेबल ही नहीं, इसको क्वॉश कर देना चाहिए। हाईकोर्ट का कहना है कि क्वॉशिंग ऑफ एन एफआईआर इतना सिंपल चीज नहीं है। क्वॉशिंग ऑफ एन एफआईआर एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, अलग अलग ऑर्डर्स, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है। जब बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन हो, जब लगे कि बिल्कुल ब्लाइंडली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसको क्वॉश कर देना चाहिए। सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट किसी कंप्लेन, किसी एफआईआर को क्वॉश कर सकती है या करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि कोई भी एलिगेशन अगर लगा है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सही और गलत को प्रूव करने के लिए। तो चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट उसको ऐसे ही क्वॉश कर दे तो फिर बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो जेन्युइन होंगे और वो भी क्वॉश हो जाएंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि जब भी कोई एफआईआर फाइल होता है, आप उसको इतनी इजीली क्वॉश नहीं कर सकते। आपको कन्विंस होना चाहिए कि एफआईआर बिल्कुल ही फ्रिवलस है, तभी वो क्वॉश हो सकता है। नाउ कमिंग टू पैराग्राफ 31, High Court says the reverting to the present case, the question is whether the allegations made in the complaint do clearly constitute a cognizable offense justifying the registration of a case। यहां से रेफरेंस शुरू होता है प्रियंका सिंह और मीतू सिंह के केस का, जो रिया चक्रवर्ती ने कंप्लेन फाइल किया, जो एफआईआर फाइल किया, जिसको क्वॉश करने के लिए दोनों बहन हाईकोर्ट गए थे, उसका। सो प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली, क्योंकि इसी का इंप्लीकेशन होने वाला है आगे। पैराग्राफ 31 में फिर से पढ़ता हूं। रिवर्टिंग टू द प्रेजेंट केस, द क्वेश्चन इज whether the allegations made in the complaint do clearly constitute a cognizable offense against the sisters or not, justifying the registration of a case and an investigation thereon, and thus this case does not fall under any one of the categories of cases formulated by the lordship in exercise of the extraordinary or inherent powers of the High Court to quash the FIR itself। हाईकोर्ट के मुताबिक जो भी कुछ एफआईआर में कहा गया है उसमें ये देखना जरूरी है कि क्या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है या नहीं बनता है बिफोर डिसाइडिंग कि हम इस केस को, इस एफआईआर को क्वॉश करें
या नहीं करें. The allegation, paragraph 32, the allegations made in the complaint reveal exchange of messages between petitioner number 1, Priyanka Singh, and the late actor Sushant Singh Rajput regarding the list of medicines. हाई कोर्ट ने कहा जो एलिगेशन लगाया गया है उस कंप्लेन में वो बताता है कि कुछ मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं प्रियंका सिंह और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में सर्टेन मेडिसिन्स को लेकर. The allegations made in the FIR pertain to a prescription dated 8/6/2020 which contained various medications controlled under the NDPS Act. It is alleged that the drugs prescribed by Dr. Tarun Kumar were prohibited from being prescribed electronically under the telemedicine practice guidelines issued on 25th March 2020, which constitutes Appendix 5 of the Indian Medical Council and regulations. The complaint reveals that in the prescription dated 8/6/2020, Dr. Tarun Kumar has prescribed Nexito 5 mg, Librium 10 mg, and Lonazep MD 05 mg to the late actor for anxiety. यानी वो कह रहा है, हाईकोर्ट कह रहे हैं कि जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने जो कहा है वो बताता है कि डॉक्टर तरुण कुमार के पास ये पावर नहीं है कि वो टेलीकॉन्फ्रेंस में के बेसिस पर ये 3 मेडिसिन जिसका नाम लिया मैंने, ये तीनों मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दें उस शख्स को जो दिल्ली में नहीं है, मुंबई में है, और वो परमिसिबल नहीं है अंडर सर्टेन गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के वक्त निकाले थे फॉर टेलीमेडिसिन ऑपरेशन के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि अब तो डॉक्टर्स के पास जा नहीं पाएंगे लोग, तो उन्होंने जो रूल्स निकाले उस रूल्स में ये कहा गया था अगर कोई भी चीज ऐसे ड्रग से रिलेटेड है जो बैंड हो उसको आप टेलीमेडिसिन से नहीं दे सकते, उसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन जरूरी है. और यहां पर सुशांत सिंह राजपूत का फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ, इसीलिए देयर सीम्स टू बी अ कॉन्स्पिरेसी बिटवीन द सिस्टर्स एंड द डॉक्टर्स. ये रिया चक्रवर्ती के लॉयर ने कहा और हाईकोर्ट ने उसको नोट डाउन किया. It is alleged that tablet Librium is with the content chlorodiazep oxide, जिसका पहले बताया गया कि जो एनडीपीएस के लिस्ट में जो बैंड सब्सटेंस है उसमें इसका नाम है और लिब्रियम में ये है, which appears at item number 36 in the list of psychotropic substance under the NDPS Act, while Nexito and Lonazep MD both contain clonazepam. ये दो चीजों का जिक्र रिया चक्रवर्ती ने किया था, क्लोरोडाइजेप ऑक्साइड और क्लोनाजेपम. ये दोनों चीजें एक लिब्रियम में है और दूसरा क्लोनाजेपम जो है वो नेक्सिटो और लोनाजेप एमडी में है, और ये दोनों चीजें आइटम नंबर 36 जो एनडीपीएस एक्ट है उसके मुताबिक बैंड सब्सटेंस है, और बैंड सब्सटेंस का प्रेस्क्रिप्शन जो है वो बगैर फिजिकल एग्जामिनेशन के नहीं दिया जा सकता, टेली कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे नहीं दिया जा सकता था, और ऐसा डॉक्टर तरुण कुमार ने किया. ऐसा प्रियंका सिंह, मीतू सिंह के कहने पे डॉक्टर तरुण कुमार ने किया. ये रिया चक्रवर्ती का एलिगेशन था अगेंस्ट द सिस्टर्स. एक आइटम नंबर 36 पे बैंड है, दूसरा 38 पे बैंड है. It is further alleged that clause 374 of the telemedicine practice guidelines provides prohibited list, and RMP providing consultation via telemedicine cannot prescribe medicine in this list. जो भी लिस्ट एनडीपीएस एक्ट में है उनकी प्रेस्क्रिप्शन नहीं दी जा सकती टेली कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे. ये पूरा बनाया है ग्राउंड रिया चक्रवर्ती ने जो हाईकोर्ट के सामने रखा. These medicines have a high potential. रीजन क्या है वो बता रहे हैं कि रीजन क्यों इसको बोला गया है कि ये आप फिजिकल एग्जामिनेशन के बिना नहीं देंगे, आप उसको फोन पर नहीं दे सकते. These medicines have high potential of abuse and could harm the patient or the society at large if used improperly. Medicines listed in Schedule 10 of Drugs and Cosmetics Act and rules, or any narcotic and psychotropic substance listed in the NDPS Act. वो मेडिसिन जो किसी को जिससे कोई नशा कर सकता है
या किसी की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है, वो आप फोन पर नहीं दे सकते. The allegation is that the accused prescribed psychotropic substances without any consultation or examination in violation of various provisions of the NDPS Act and the Telemedicine Practice Guidelines 2020. It is further alleged that the prescription prepared by them in connivance with each other is a fabricated and a false document. The prescription reflects the deceased as an OPD patient when on the date and time at which the said prescription was sent, the deceased was very much in Mumbai, Maharashtra, and not in New Delhi. It is further alleged that Dr. Tarun Kumar, being a cardiologist, thought it fit to prescribe psychotropic substance to a person, that is Sushant Singh Rajput, he did not know that and had never met. The allegation is that unlawful prescription of psychotropic substance was obtained at the behest of the late actor's sister Priyanka Singh and the said Dr. Tarun Kumar. It is thus alleged that even the death of the deceased and the investigation surrounding the circumstances of his death, it is imperative that the actions of petitioner number 1, Priyanka Singh, and Dr. Tarun Kumar and other known or unknown persons who conspired to prescribe such uncontrolled substance ought to be investigated as well. ये पूरा केस रिया चक्रवर्ती के लॉयर ने बनाया कि ऑनलाइन कंसल्टेशन के हिसाब से इस तरह का प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा सकता, नंबर 1. नंबर 2, फिजिकल एग्जामिनेशन सुशांत सिंह राजपूत की हुई नहीं. अगर फिजिकल एग्जामिनेशन हुई होती तो सुशांत सिंह राजपूत को दिल्ली में होना चाहिए था. सुशांत सिंह राजपूत ऑल अलोंग मुंबई में थे. तो फिर कमरा नंबर 6, पेशेंट नंबर 81, वक्त 11:17 पे कौन था वहां पर? वो नहीं थे. यानी किसी तरह का कोई कंसल्टेशन फिजिकल नहीं हुआ. ऐसे में ये डॉक्यूमेंट जो है वो फोर्ज हो जाता है, ये डॉक्यूमेंट फेक हो जाता है, ये डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होता. ये एलिगेशन है रिया चक्रवर्ती ने जो लगाया है अगेंस्ट द सिस्टर्स, और हाईकोर्ट ने वो जितने आर्गुमेंट्स हैं उनको नोट किया. यानी रिया चक्रवर्ती और उनके लॉयर ने पूरा बेस और पूरी बेसिस सिर्फ एक चीज पे बनाई है, वो ये कि कंसल्टेशन सुशांत सिंह राजपूत का डॉक्टर के साथ हुआ या नहीं हुआ. और अगर नहीं हुआ तो फिर ये कॉन्स्पिरेसी है जिसमें प्रियंका सिंह, नीतू सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार शामिल हैं, या और भी ऐसे लोग जिनका नाम नहीं पता वो भी शामिल है. ये पूरा केस बनाया. आगे क्या हुआ वो बता रहा हूं. पैराग्राफ 33, वी हैव रीच्ड पैराग्राफ 33. 3-4 पैराग्राफ्स और हैं. It is further alleged that the complainant suspects, complainant means Riya Chakravarti. Riya Chakravarti suspects that due to such banned medicine prescribed by Dr. Tarun Kumar at the behest of Priyanka Singh, having knowledge that such banned medicine and heavy dose of medicine may result into chronic anxiety attack which may damage health of late actor further, and the medicine might have been procured by petitioner number 2, Neetu Singh, and further consumption by late actor which resulted into suicide. This is what they concluded. उनका कहना है, जो पैराग्राफ 33 में हाईकोर्ट ने नोट किया है, रिया चक्रवर्ती के लॉयर सतीश मान शिंदे और बाकी लोगों ने कहा, या मुंबई पुलिस के लॉयर ने कहा, वो ये कि जो कंप्लेनेंट है रिया चक्रवर्ती, उसका सस्पिशन है that due to such banned medicine prescribed by Dr. Tarun Kumar, Dr. Tarun Kumar ने जो बैंड मेडिसिन दिया उसके कारण, और जिसको एक्वायर किया यानी जो प्रेस्क्रिप्शन लिया प्रियंका सिंह ने और दवाई खरीदा मीतू सिंह ने, उसके कारण सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत और खराब हुई, उसको एंजाइटी अटैक हुआ और उसका तबीयत बिगड़ती गई एंड ही कमिटेड सुसाइड. ये पूरा एलिगेशन है. दिस इज व्हाट दे कंक्लूडेड, स्टार्टिंग फ्रॉम टेली कॉन्फ्रेंसिंग, उसके बाद बैंड सब्सटेंस, उसके बाद प्रेस्क्रिप्शन, and the conclusion is that he committed suicide because of the fault of the sisters. इसीलिए अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस इन लोगों के खिलाफ चलना चाहिए. ये रिया चक्रवर्ती ने अपना एलिगेशन जो हाईकोर्ट में लगाया है वो है, जो हाईकोर्ट के इस जजमेंट में नोटेड है. Further it says, it is therefore alleged that the accused abated the suicide of the late actor. Along with the complaint, we are enclosed the printouts of WhatsApp chats. वो WhatsApp chat जो सुशांत सिंह राजपूत और उनकी बहन प्रियंका सिंह के बीच हुई,
8 तारीख को यानी 8 जून को, उसके साथ वो प्रेस्क्रिप्शन और जो गवर्नमेंट आरएमएल हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसके लेटर हेड पे दिया गया प्रेस्क्रिप्शन, वो साथ में उन्होंने लगाया और उस पर क्योंकि स्टैंप है हॉस्पिटल का और डॉक्टर तरुण कुमार का स्टैंप है, ये सब कंबाइन करके उन्होंने इसको एज अ प्रूफ दिया कि ये बताता है कि ये फोर्स डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसी तरह की चीज नहीं देनी चाहिए थी डॉक्टर तरुण कुमार को, उन्होंने दिया, प्रियंका सिंह ने उनसे लिया, मीतू सिंह ने दवाई खरीदा, उसको एक एंजाइटी अटैक हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। ये कहानी पूरी बनाई है। यानी रिया चक्रवर्ती के मुताबिक, कोई शक किसी के दिमाग में मत ना रहे, अब रिया चक्रवर्ती के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत डाइड ऑफ सुसाइड। तो फिर सवाल बहुत सारे उठते हैं, मैं सवालों पर बाद में आ जाऊंगा, पहले लेट्स फिनिश द ऑर्डर, बिकॉज इसमें अगर जाएंगे तो सवाल तो बहुत सारे आएंगे जिसको लेकर हम अभी इस वक्त डिस्कस नहीं करें, पहले इस ऑर्डर को कंप्लीट कर लेते हैं, 3-4 ही पॉइंट बाकी। इट इज नेक्स्ट पॉइंट इज पैराग्राफ 34. It is alleged that the purported OPD prescription dated 8/6/2020 and transcripts of the WhatsApp chats conversation between Priyanka Singh and Sushant Singh Rajput categorically point out that the medicines were being prescribed without online consultation. Further, it is alleged that the OPD registration card dated 8/6/2020 is timed at 11:16:37 a.m. from Dr. R.M. Ram Manohar Lohia Hospital. Wrong name is incorrectly written here. RML Hospital, New Delhi, in the name of patient Sushant Singh Rajput, aged 34 years, shown in room number 6, queue number 81. In the said OPD card, Dr. Tarun Kumar, Associate Professor Cardiology, has purportedly examined actor Sushant Singh Rajput in room number 6 at the said hospital in Delhi and diagnosed him with anxiety and prescribed him the following drugs: Nexitor, Librium, and Lonazep. Point number 35. The allegation is that the purported OPD registration card dated 8/6/2020 issued in Delhi is a fabricated one and is purportedly issued without examination of the late actor, who was actually in Mumbai. It is further alleged that WhatsApp conversation and the prime time of conversation between petitioner number 1, Priyanka Singh, and Sushant Singh Rajput prima facie demonstrate that no teleconsultation actually took place between late actor and Dr. Tarun Kumar. It is thus submitted that in view of the materials on record, an investigation is necessitated as the material shown that there are not even an online consultation with the doctor and the prescription is fabricated. So they are trying to prove that through all the facts. एक और बहुत important चीज है, I have not seen the chats or I have seen it, maybe I don't have it. It is very important. आप लोगों के पास है तो प्लीज फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो टाइमिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन है विच इज 11:16:37 11 hours 16 minutes 37 seconds पे, और जो चैट्स हैं बिटवीन प्रियंका सिंह एंड सुशांत सिंह राजपूत वो मिसमैच करते हैं और उससे ऐसा लगता है, वो प्रूव करता है कि कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वो चैट्स जो हैं सुशांत सिंह राजपूत के और प्रियंका सिंह के बीच वो इसके बाद होने चाहिए, यानी पहले प्रेस्क्रिप्शन बाद में चैट। तो प्लीज एनीवन हैज दैट चैट डिटेल्स और द व्हाट्सएप चैट बिटवीन द टू, प्लीज फॉरवर्ड इट और लेट मी नो द टाइमिंग कि वो चैट कितने बजे का है। प्लीज टेल मी द करेक्ट वन, डोंट गिव मी अ रॉन्ग वन बिकॉज अदरवाइज आई हैव टू सर्च। ऐसा ना हो कि जो आप मुझे भेज रहे हैं उसमें टाइमिंग गड़बड़ हो। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रियल है और एक्चुअल है एंड नॉट अ फैब्रिकेटेड व्हाट्सएप चैट, वो प्लीज फॉरवर्ड कीजिए और टेल मी द टाइम कि उसमें क्या टाइम लिखा हुआ है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिया चक्रवर्ती जो प्रेस्क्रिप्शन का टाइम है और जो चैट का टाइम है वो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कोई टेलीकॉन्फ्रेंस कंसल्टेशन भी नहीं हुआ है, यानी किसी तरह का कोई कंसल्टेशन ही नहीं हुआ। तो प्लीज फॉरवर्ड मी दैट चैट। पैराग्राफ 36. At this juncture, it is necessary to make a reference to the provision of NDPS Act and rules thereunder. In the facts of the present case, it is seen that medicines prescribed are in the list of psychotropic substance under the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Act 1985. We have carefully read the written submissions of the learned senior advocate appearing for
respondent number 1, that is Mumbai Police, and found it worth to accept the said legal submission quo petitioner number 1 Priyanka Singh, which would attract the provision of NDPS Act. हाई कोर्ट के मुताबिक हमने एग्जामिन किया है जो उन्होंने रिटर्न सबमिशन दिया है, और एनडीपीएस एक्ट में जो कुछ भी लिखा है उसमें तीनों ड्रग्स प्रोहिबिटेड हैं, और ये जो एलिगेशन है रिस्पोंडेंट नंबर 1 अगेंस्ट पिटिशनर नंबर 1 प्रियंका सिंह, वो एनडीपीएस एक्ट में जो बैंड सब्सटेंस है और जो मेडिसिन है उसके ब्रैकेट में आता है. पैराग्राफ 37, कंसिडरिंग द राइवल कंटेंशंस, दोनों के ऑपोजिट कंटेंशंस, allegations made in the complaint, the material enclosed along with the complaint, prima facie disclose alleged offences as against Priyanka Singh. Therefore, there is no force in the contention raised by the counsel of the petitioner Vikas Singh that the allegations made in the counter complaint, even if they are taken at their face value and accepted in their entirety, do not prima facie constitute any offense or make out a case against the petitioner number 1. Then it says /accused, petitioner number 1 /accused Priyanka Singh. So ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि क्या कहा जा रहा है इसमें. Considering the rival contentions, allegations made in the complaint, और जो मटेरियल रिकॉर्ड पे डाला गया है along with the complaint जो रिया चक्रवर्ती ने फाइल किया, वो प्रामा फेसाई बताते हैं कि ऐसा गुनाह प्रियंका सिंह ने किया है. उन्होंने एक ऐसा प्रेस्क्रिप्शन लाके दिया जो सही नहीं है. नंबर 1, पिटिशनर नंबर 1, therefore there is no force in the contention. जो विकास सिंह कंटेंशन दे रहे हैं उसमें कोई लॉजिक नहीं है कि उनको कोई हक नहीं था ये पिटीशन फाइल करने का, या कंप्लेन फाइल, रिया चक्रवर्ती को कोई हक नहीं था वो एफआईआर फाइल करने का. वो एफआईआर गलत है उनके मुताबिक, हाईकोर्ट के मुताबिक. जो एफआईआर है वो इस ग्राउंड पर सही है कि जो फैक्ट्स रखे गए हैं वो प्रिमा फेसाई सही लगते हैं, और एक ऑफेंस सीम्स टू हैव बीन मेड आउट अगेंस्ट प्रियंका सिंह, एंड देन फ्रॉम पिटिशनर नंबर 1 High Court has turned her into an accused. It is well settled principle of law that the power of quashing a criminal proceedings should be exercised very sparingly. अभी तक final judgment उन्होंने नहीं दिया है, they're just discussing it. So hang on, listen to the final part. It is well settled principle of law that the power of quashing a criminal proceeding should be exercised very sparingly and with circumspection, and that too in the rarest of the rare cases. That the court will not be justified in embarking upon an inquiry as to the reliability or genuineness or otherwise of the allegations made in the FIR or complaint, that the extraordinary or inherent powers do not confer an arbitrary jurisdiction of the court to act according to its whims and fancies. यानी अपने मर्जी के हिसाब से कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं इस केस को क्वॉश कर दूंगा, इस एफआईआर को क्वॉश कर दूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रूल बहुत क्लियर कर दिया है कि आप केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा कर सकते हैं. पैराग्राफ 38, the honorable supreme court in the case of state of Karnataka and another versus Pastor P Rajul 16 has settled the legal position, stating the high court ought not to interfere with and quash the entire proceedings in exercise of power conferred by section 482 of the CRPC when the matter was still at the investigation stage. We may also make a profitable reference to the decision in the case of state of Telangana versus Habib Abdullah Jilani, where their lordship have held that there is no denial of the fact that power under section 482 CRPC is of very wide amplitude, but it needs no special emphasis to the state that the conferment of wide powers requires the court to be more cautious. It casts an enormous and more diligent duty on the court. आप इस तरह से किसी एफआईआर को क्वॉश नहीं कर सकते. इसमें कई सारे फ्लिप साइड हैं. Just hang on, the story is not over. So there is lot of things that we need to discuss here, क्योंकि इस केस में जो कुछ चल रहा है उसके अलावा भी बहुत कुछ है जिस पर सवाल उठते हैं. Reverting to the present case, paragraph 39, reverting to the present case, in our considered view, ये operative portion है. In our considered view, the allegations made in the complaint do clearly constitute a cognizable offense as against only petitioner number 1, Priyanka Singh, justifying the registration of the case
and an investigation under section 16 2006 S6 SCC 72817 XYZ, with the references they are making thereon, and thus this case does not fall under any of the one categories of cases formulated in Bhajan Lal calling for the exercise of extraordinary or inherent powers to quash the FIR. यानी हम वो extraordinary powers यूज नहीं कर सकते प्रियंका सिंह केस में कि हम वो FIR quash कर दें, क्योंकि एक prima facie case is made out against her. So far as petitioner number 2, Meetu Singh, is concerned, we find from the complaint and the material on record that the allegations is made against her is only on the basis of suspicion that the medicine might have been procured by her. It is on the basis of suspicion and vague allegation that the FIR is registered against Meetu Singh. And respondent number 2, that is Riya Chakravarti, in the complaint says that she came to know that petitioner number 2, Meetu Singh, who lives in Mumbai, came to stay with actor Sushant Singh Rajput in the evening of June 8th after the respondent number 2, Riya Chakravarti, left. It is the allegation that till 12/6/2020, am I visible? Any doubt? Am I visible? Okay. So it is the allegation that till 12/6/2020, petitioner number 2 was the only person. ये रिया चक्रवर्ती कह रही है. It is उनका allegation है कि क्योंकि मीतू सिंह उनके साथ रह रही थी 8 से लेकर 12 तारीख तक, और वो आखिरी शख्स थी जो उनके साथ रह रही थी, इसीलिए उन्होंने दवाई लिया होगा, इसीलिए उन्होंने दवाई खिला दिया होगा. Number 2 was the petitioner number 2 was the only person taking care of Sushant Singh Rajput, and she had administered the medicine mentioned in the Dr. Tarun Kumar's prescription without supervising the doses and quantity of the medicines. There are no specific allegations and overt acts attributed to petitioner number 2, Meetu Singh, in the FIR. However, the complaint primarily proceeds on the allegation that the banned medicines prescribed by Dr. Tarun Kumar was at the behest of petitioner number 1, Priyanka Singh, who was having knowledge that the said banned medicine and the heavy doses of medicine may result into chronic anxiety attack, which may cause the death of Sushant Singh Rajput. रिया चक्रवर्ती ने कहा क्योंकि वो मुंबई में रह रही थी, वो 8 तारीख को आ गई, 12 तारीख तक वो थी, उनको सारा नॉलेज था, उन्होंने उनको प्रिस्क्रिप्शन मिला, उन्होंने दवाई खरीदा, उनको खिला दिया, इसीलिए वो भी पार्टी बन गई. So far, the contention of the learned senior advocate that the complaint is malicious and more in the nature of counterblast, as the same is filed at the instance of Riya Chakravarti, who is an accused in a FIR registered at the instance of late actor's father, having gone through the complaint and the materials enclosed scrupulously, we are not persuaded to hold that these allegations can be substantiated at this stage, and hence we are unable to persuade ourselves to agree with the submission of senior advocate for the petitioner Vikas Singh. हाई कोर्ट ने कहा कि दो चीजें हैं, एक रिया चक्रवर्ती ने मीतू सिंह को लेकर कहा, और वो सारा लगता है एज प्रिजम्पशन है, एलिगेशन है, वेग है कि उन्होंने लिया होगा, उन्होंने मेडिसिन खरीदा होगा, उनको नॉलेज होगा. लेकिन दूसरा जो केस है, जो पेटिशनर के काउंसिल विकास सिंह कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती का जो पिटीशन है वो सिर्फ एक काउंटर अटैक है अगेंस्ट द फैमिली, वो हम होल्ड नहीं करते. गुड, क्योंकि अगर मान लीजिए काउंटर अटैक है भी, तब भी अगर एलिगेशन है तो उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और हम इस स्टेज पर इस एफआईआर को क्वॉश करने के पोजीशन में नहीं है बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स. इट मे बी दैट द रिलेशन बिटवीन द पिटिशनर एंड द रिस्पोंडेंट नंबर 2, यानी Priyanka Singh, Meetu Singh and Riya Chakravarti are strained, but we cannot overlook the serious allegations made in the complaint and materials on record, and the fact that the investigation is in progress and same is not yet concluded. We may note that the FIR was already being transferred to the CBI for investigation in the light of the directions of the Honorable Supreme Court, and even the counsel for CBI submitted that so far as FIR lodged by the father is concerned, the CBI is conducting investigation meticulously, professionally, without being hindered by any external factor, and would thoroughly look into each and every aspects relating to the death of late actor in a fair and impartial manner. Moreover, it is submitted by senior advocate for CBI that if the respondent number 1 and 2, which is Mumbai Police and Riya Chakravarti, had to provide any information regarding the death of the late actor, the same should have been directly shared with the CBI for necessary action at its end, and the registration of the FIR by Bandra Police
on the said information was not required. In any case, now that the respondent number 3, that is CBI, is investigating into the matter and has submitted that the same will be done meticulously and professionally without being hindered by any external factor, an investigating officer would thoroughly look into each and every aspect relating to the death of late actor in a fair and impartial manner. There is no reason why CBI should not carry out a meticulous investigation also based on counter complaint filed by रिया चक्रवर्ती. तो सीबीआई का कहना था कि क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास केस था, अगर कोई इंफॉर्मेशन देना था तो रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस हमको दे सकते, उनको एफआईआर फाइल करने की जरूरत नहीं थी. हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई के काउंसिल का कहना है कि हम हर एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. अगर मान लीजिए फाइल कर भी दिया उन्होंने और हमने, क्योंकि हमें लगता है कि इसमें अगर उन्होंने फाइल किया तो कुछ गलत नहीं है, ऐसे में अब क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है सारे पॉइंट, तो इसको भी इन्वेस्टिगेट कर ले तो उसमें क्या प्रॉब्लम. 41 point, which is the order. From the reading of the complaint and materials on record, it is seen that the allegations are primarily against petitioner number 1, Priyanka Singh, and Dr. Tarun Kumar. The FIR appears to have been registered against petitioner number 2, Meetu Singh, only on suspicion, without attributing specific overt acts to petitioner number 2, that is Meetu Singh, that she abetted the alleged act of suicide by late actor Sushant Singh Rajput. Even the allegation in the FIR records that the medicines might have been procured by the petitioner number 2, the consumption thereof, which resulted into his suicide. जबकि एक तरफ प्रियंका सिंह और उनके और डॉक्टर हैं जिनके अगेंस्ट में मटेरियल अवेलेबल है टू शो कि उन्होंने प्रोक्योर किया वो प्रेस्क्रिप्शन, उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन लिखा, लेकिन मीतू सिंह के अगेंस्ट में तो केवल अंदाजा ही लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं. Based on the only suspicion against Meetu Singh, it is alleged that the petitioner number 2, Meetu Singh, abetted the actor's suicide. On overall consideration, we find that there are vague and general allegations against the petitioner number 2, Meetu Singh. There is no conversation or WhatsApp message, chats at the relevant time within the proximate date and time of alleged suicide by the late actor Sushant Singh Rajput between Meetu Singh and Sushant Singh Rajput. In short, there are no certain positive acts attributable to Meetu Singh showing involvement in the commission of offences within the proximity of alleged commission of suicide by Sushant Singh Rajput. In that view of the matter, we are of the considered opinion that FIR number 576 of 2020, that is counter complaint made by Riya Chakravarti related to second petitioner Meetu Singh, deserves to be quashed and set aside, and is accordingly quashed and set aside as far as Meetu Singh is concerned. So far as Priyanka Singh is concerned, we do not find any merit in the present petition filed by Priyanka Singh, and the same is accordingly dismissed. Rule is disposed of in the above term. The observations made herein above are prima facie in the nature and confined to adjudication of the present case only. Rejection of this petition related to petitioner number Priyanka Singh shall not be construed as an impediment to petitioner number 1, that is Priyanka Singh, to avail of an appropriate remedy in case investigating officer decides to file the charge sheet. अगर उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डिसाइड करता है चार्जशीट फाइल करने के लिए, तो उनके पास रेमेडी होगा कि वो कुछ भी जो भी करना चाहें करें. पैराग्राफ 42 में जो उन्होंने कहा, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर था वो ये कि जो कुछ भी फैक्ट्स सामने है उसके हिसाब से मीतू सिंह के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रियंका सिंह के अगेंस्ट में देयर इज अ क्लियर केस मेड आउट. आई विल रिपीट द पार्ट रिलेटेड टू प्रियंका सिंह, दैट्स व्हाट इज गोइंग टू बी चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट. उनके लॉयर ने कहा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, तो ये पार्ट चैलेंज होगा. So far the petitioner number 1, Priyanka Singh, is concerned, we do not find any merit in the present petition and the petition is dismissed. यानी प्रियंका सिंह का जो पिटीशन था वो डिसमिस कर दिया गया. जो विकास सिंह ने आर्गुमेंट्स रखे थे वो डिसमिस कर दिए गए. विकास सिंह ने बहुत सारे आर्गुमेंट्स रखे थे, लेकिन कुछ आर्गुमेंट्स ऐसे थे जो शायद उन्होंने नहीं रखे. मेरे पास कई सारी चीजें हैं जो मैं कह सकता हूं जो शायद विकास सिंह को कोर्ट में कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, शायद उनका ध्यान नहीं गया. रिया चक्रवर्ती एंड हर लॉयर सतीश मानशिंडे could prove and they succeeded in proving कि जो प्रेस्क्रिप्शन की बात थी
वही सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई, कंसल्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन रिया चक्रवर्ती का चुप रहना 83 डेज के लिए, एग्जैक्टली 83 डेज रिया चक्रवर्ती चुप थी, वो रिलेवेंट ही नहीं रहा। ऐसा कैसे हो गया? मतलब 83 डेज बाद, 83 दिन बाद रिया चक्रवर्ती आई और उन्होंने एलिगेशन लगाया फैमिली के अगेंस्ट में, प्रियंका सिंह और मीतू सिंह के अगेंस्ट में, और वो रेलिवेंट नहीं रहा, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं रहा, क्योंकि इस पूरे जजमेंट में सिर्फ 2 रेफरेंसेस हैं जो जजमेंट में विकास सिंह को कोट करके उन्होंने सारे आर्गुमेंट्स नोट किए हैं। सिर्फ 2 रेफरेंसेस हैं जो इससे रिलेटेड हैं कि रिया चक्रवर्ती वाज क्वाइट, व्हाई वाज शी क्वाइट। सिर्फ 2 रेफरेंसेस हैं और वो पूरी तरह से प्रूव नहीं कर पाए कि इस केस का मेन पॉइंट ये है कि रिया चक्रवर्ती जानबूझ के चुप रही 83 दिन तक, या ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसी कोई बात थी ही नहीं। मेडिसिन के कारण अगर सुशांत सिंह राजपूत की जान जानी थी तो फिर पहले दिन ही रिया चक्रवर्ती को कह देना चाहिए था, अगर उनको सब पता था, क्योंकि ये बात तो प्रूव्ड है कि रिया चक्रवर्ती घर छोड़ के इसलिए गई कि उनका झगड़ा दवाई को लेकर हुआ था। तो फिर ये बात हाईकोर्ट में बार बार लगातार क्यों नहीं कही गई? 2 रेफरेंसेस हैं, मैं हाईकोर्ट के पॉइंट्स हैं और उन्होंने नोट किया है किस लॉयर ने क्या कहा है, मैंने पूरा वर्डिक्ट पढ़ा है, उसमें सिर्फ 2 रेफरेंसेस हैं, बाकी रेफरेंसेस नहीं है। और दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के लॉयर ने सिस्टमैटिकली सिर्फ एक पॉइंट को रेज किया और लगातार वही पॉइंट रेज करते रहे कि कोई भी कंसल्टेशन ही नहीं था। अगर मान लो कंसल्टेशन नहीं था, मान लो अब तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, तो वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन एनी ऑफ द जजेस और एनी ऑफ द वर्डिक्ट, बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं। अगर उनके पास पता था उनको कंसल्टेशन नहीं हुआ रिया चक्रवर्ती को, तो बता देना चाहिए था। ऐसा तो कहीं उन्होंने नहीं कहा कि कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ। मतलब 83 डेज तक, 83 दिन तक तो उन्होंने कहा ही नहीं कि दवाई के कारण सुशांत मरा। वो तो कहती रही मैं पता करना चाहती हूं। तो फिर 1 2 3 4 5 6 इंस्टेंसेस हैं जहां ये साफ होता है कि रिया चक्रवर्ती चाहती तो बोल सकती थी। तो फिर वो 6 इंस्टेंसेस क्यों नहीं रखे गए हाईकोर्ट के सामने? सिर्फ 2 इंस्टेंसेस। इस केस में कई सारी चीजें, बहुत क्रिटिकल केस है। रिया चक्रवर्ती के लॉयर सतीश मान शिंदे बहुत इंटेलिजेंट लॉयर है और उन्होंने प्रूव कर दिया सिर्फ एक पॉइंट को उठाकर, जिस पॉइंट का कोई जिक्र नहीं हुआ है। विकास सिंह ने कहा कि मेरी क्लाइंट तो केस में एलिगेशन ही नहीं, कोई केस ही नहीं बनता है, लेकिन एक प्रेस्क्रिप्शन को लेकर पूरी कहानी बना दी। अब मैं जानना चाहता हूं कि वो चैट कितने बजे का है। अगर किन्हीं लोगों ने लिखा है, ओके 1 second, let me check messenger, lot of people are writing, they have sent messages on messenger, just give me a minute, I will go through that. मैं 6 इंस्टेंसेस अभी बता रहा हूं आपको, अगर आप लोग 10 मिनट और बेयर कर सकते हैं, प्लीज टेल मी, अदरवाइज आई कैन कम एंड टॉक अबाउट दैट टुमारो। So please tell me, if you want me to point out those 6 instances now, I can very well do it. If you want me to point those lapses which has costed the family so dearly, I can do that now, or I can do it tomorrow. You guys please tell me, I will take 10 minutes. But इस पूरे वर्डिक्ट में ऐसा लगता है कि सतीश मान शिंदे ने एक छोटी सी बात को इतनी बड़ी बनाई और प्रूव भी कर दी। और यहां पर यह बात प्रूव नहीं हो सकी कि 83 डेज, 83 दिन तक एक शख्स चुप रहा, उसका इंटेंशन क्या था, यह बात प्रूव ही नहीं कर पाए और सारा केस यहीं पर खराब हो गया। आज प्रियंका सिंह के अगेंस्ट में केस अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उसका रीजन क्या है? सतीश मान शिंदे का यह प्रूव कर देना कि प्रियंका सिंह ने दिल्ली में बैठे बैठे बगैर कंसल्टेशन के, एनडीपीएस एक्ट के रूल्स को वायलेट करते हुए, टेलीकॉन्फ्रेंस रूल्स को वायलेट करते हुए, बगैर कंसल्टेशन के, बगैर टेलीफोनिक कंसल्टेशन के ये प्रेस्क्रिप्शन ले लिया और उस एक प्रेस्क्रिप्शन के बेसिस पे उन्होंने पूरे केस को बदल के रख दिया। ओके, some are saying yes, please continue. Okay, I will point out, I have the points, I'll just point out. 1 second, let me just check the messenger. Some people are saying they have sent something on messenger, let me just go through it कि क्या भेजा है।
आई होप देयर सम, आई विल से रादर पीपल, दो लोग मैसेंजर में मुझे मैसेज कर रहे हैं, वो खुद आके बोले, बिकॉज दिस इज वेरी क्रिटिकल. वन सेकेंड. ओके, वन सेकेंड. Abhi, I won't be able to go to links. Let me just first complete what I was talking. Let me just point out the 6 instances. और जो इंस्टेंस मेंशन किए हैं वो भी मैं बता देता हूं. पॉइंट नंबर 2, सबसे पहले इस वर्डिक्ट में सबसे पहले वो चीजें आई हैं जो लॉयर्स ने कही हैं. तो जो ऑर्डर का पॉइंट नंबर 2 है, शुरू में जो आर्ग्यूमेंट्स लिए गए हैं वो विकास सिंह के आर्ग्यूमेंट्स लिए गए, और उनमें 2 पॉइंट्स, कई सारे पॉइंट्स हैं, और उसमें जो पॉइंट नंबर 2 है, और 2, 3, 4 बहुत सारे हैं. मेरे हिसाब से जो पॉइंट्स नहीं है और जो हैं वो मैं बता रहा हूं. आई विल नॉट गो कि एग्जैक्टली क्या उन्होंने कहा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, 12 बज जाएंगे. आई डोंट वांट टू गो दैट मच इनटू डिटेल. कल आता तो शायद मैं वो डिटेल में पढ़ के उसके बाद मैं पॉइंट बताता, बट टुडे इफ यू वांट टू नो, आई विल क्विकली गो थ्रू द पॉइंट्स दैट आई नोटिस्ड. ओके, हियर वी गो. जो पॉइंट्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं और जो पॉइंट्स इस ऑर्डर में हैं और जो नहीं है, वो तीनों चीजें लाना. पहला पॉइंट, Riya Chakravarti has all along maintained that she left the house or was asked to leave the house because of the fight she had with Sushant Singh Rajput, because he refused to take the medicines prescribed by the doctors in Mumbai and given to him by her. So she knew on 8th of June that the medicines were being changed even before she left the house on June 8. और ये बात विकास सिंह ने कही. विकास सिंह said this before the High Court that Riya Chakravarti was aware before she left the house on 8th of June that the medicine was changed. Number 1 point. Number 2, if she knew, जो दूसरा पॉइंट, एक सेकेंड, जो दूसरा पॉइंट विकास सिंह ने कहा वो भी मैं बता देता हूं. She sent out a tweet on to Home Minister Amit Shah on July 15th or 16th, and in that she did not mention anything about the change of medicine. She said she wanted to know that what was the pressure because of which Sushant committed suicide. That means Riya thought Sushant was under some kind of a pressure and may have committed suicide because of that. Now what Vikas Singh mentioned was this, that in her tweet to the Home Minister, she did not mention the change of medicine. ये 2 रेफरेंसेस हैं, यानी जो विकास सिंह ने रेफरेंस दिया उनमें से एक रेफरेंस है ट्वीट का, टू प्रूव दैट शी शुड हैव लॉजिकली डन दैट. दूसरा विकास सिंह ने रेफरेंस दिया दैट इट इज रॉन्ग टू बिलीव दैट रिया चक्रवर्ती वाज नॉट अवेयर. रिया चक्रवर्ती वाज अवेयर व्हेन शी लेफ्ट द हाउस. 8 तारीख को जब वो निकली तो उनको पता था कि मेडिसिन चेंज हुआ है, तो फिर वो चुप क्यों रही. इसके अलावा कई और इंस्टेंसेस हैं और मैं वो बता रहा हूं, उनका सिस्टमैटिकली रेफरेंस होना चाहिए था क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल है. पहला तो बता दिया दैट 8 तारीख को उनको नॉलेज थी, लेकिन वो उन्होंने नहीं बताया और वो कुछ नहीं किया. पॉइंट बहुत सिंपल है. अगर 8 तारीख को रिया चक्रवर्ती ने घर छोड़ा या उनको निकाला गया तो उनको पता था कि ये सारी लड़ाई उनकी दवाई को लेकर हुई और दवाई बदली जा रही थी. तो जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ 14 तारीख को हुई, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 27 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख, रिया चक्रवर्ती ने एफआईआर क्यों नहीं फाइल किया? रिया चक्रवर्ती ने एफआईआर क्यों नहीं फाइल किया? इस बात का रेफरेंस इसमें होना चाहिए था. आर्ग्यूमेंट में जो सुप्रीम, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसमें ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है कि विकास सिंह ने कहा कि अगर ऐसा था तो उन्होंने ये डेट्स में एफआईआर क्यों नहीं फाइल की. उन्होंने अमित शाह का रेफरेंस दिया और दूसरा रेफरेंस दिया 8th वाला. लेकिन बात वहां खत्म नहीं होती. बात होती है अगर 8 तारीख को उनको पता था और 14 तारीख को जब डेथ हुई तो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं लिया उसी दिन एफआईआर करने के लिए फैमिली के अगेंस्ट में कि इन लोगों ने मार दिया सुशांत को बिकॉज मेडिसिन बदल दी. उन्होंने नहीं कहा. नंबर 1. नंबर 2, मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती को 2 दिन के लिए इंट्रोगेशन के लिए बुलाया था ऑन 18th and 19th of June.
और 19 जून को उनकी 9 घंटे तक क्वेश्चनिंग हुई थी। रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस को नहीं बताया कि मेडिसिन बदला गया था। क्यों नहीं बताया? जैसे उन्होंने कंपनी के बारे में नहीं बताया था कि 3 कंपनियां हैं सुशांत सिंह राजपूत की, और वो कंपनी में से 2 में उनके भाई पार्टनर्स हैं। उसी तरह रिया चक्रवर्ती ने यह भी नहीं बताया कि दवाई बदली गई थी। क्यों नहीं बताई थी? उनके पास अपॉर्चुनिटी था। 18 और 19 जून को जब मुंबई पुलिस ने बुलाया था रिया चक्रवर्ती को, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो बता सकती थी। क्यों नहीं बताया? क्यों इसका रेफरेंस नहीं था इस हाईकोर्ट का ऑर्डर में? क्यों नहीं ये पॉइंट रखा गया था? जो होम मिनिस्टर वाला पॉइंट है, मैंने वो बताया, वो पॉइंट ऑलरेडी कवर्ड है। उसमें पॉइंट ये है कि अगर उन्होंने ये कहा था तो फिर वो क्या प्रेशर था जिसके बारे में रिया चक्रवर्ती को मालूम था? क्योंकि उन्होंने कहा ना, व्हाट इज दैट प्रेशर, आई वांट टू नो। दैट मींस maybe she was aware that there's some kind of pressure he was facing. Next point. Family filed an FIR on July 25th in Patna. रिया ने उसके बाद भी नेक्स्ट डे काउंटर नहीं फाइल किया। क्यों? उस दिन तो पता था, पूरी दुनिया बता रही थी, हम सब लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो रिया चक्रवर्ती ने तुरंत क्यों नहीं फाइल किया? चलो एक अच्छा इंसान होता है तो नहीं करता। चलिए, अब आपके अगेंस्ट में ही फैमिली ने फाइल कर दिया ना, अब आप क्यों इंतजार कर रहे थे? ये बात भी हाई कोर्ट में स्पेसिफिकली कहनी चाहिए थी, बिकॉज दिस इज रेफरेंस नंबर 4। पहला 8 जून का रेफरेंस, दूसरा 18th 19th की क्वेश्चनिंग मुंबई पुलिस की, तीसरी 14th 15th और 16th जुलाई का अमित शाह का ट्वीट। 4th रेफरेंस शुड हैव बीन अबाउट द एफआईआर जो फैमिली ने फाइल किया, उसके बाद भी उन्होंने नहीं किया। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट शी फाइल्ड अ पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन में भी नहीं लिखा। Why didn't she write? She went seeking quashing of the FIR on the ground की jurisdiction नहीं है पटना पुलिस के पास। jurisdiction का सवाल तो उस दिन आपने उठाया, आज आपने jurisdiction का सवाल नहीं उठाया, आज तो आपने दूसरा ही सवाल उठा दिया। तो फिर आपने क्यों नहीं कहा उस पिटीशन में कि मेन क्वेश्चन ये नहीं है jurisdiction का, मेन क्वेश्चन तो ये है कि ये FIR फ्रिवलस है, क्योंकि रियल FIR तो मैं फाइल कर रही हूँ और रियल चीज ये है कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वो पांचवी पॉसिबिलिटी थी रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती चाहती तो वहीं पर पूरे केस को बदल सकती थी, कह सकती थी कि मैं इन्वेस्टिगेशन चाहती हूं मेरे कंप्लेंट पर, न कि फैमिली के कंप्लेंट पर। जुरिस्डिक्शन का सवाल नहीं उठाना चाहिए था, सवाल ये उठाना चाहिए था कि उन लोगों को तो इन लोगों ने मार दिया है, आपने क्यों नहीं बोला? अगर आप इतनी कन्विंस थी तो इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? 83 डेज का गैप है, 83 दिन का गैप होता है और बहुत बड़ा ग्राफ है। और 83 दिन बाद, 83 days later, she decided to file this FIR. What was the motive behind it? ये रिया चक्रवर्ती का क्या मोटिव था? 83 days, why was she quiet? What was the reason for her silence? The point of silence, why was it not stressed? आप सोचिए ना, सतीश मान शिंदे ने एक पॉइंट को उठाकर दिल का ताड़ बना दिया, और इतनी बड़ी बात है, रिया चक्रवर्ती 83 दिन तक इस बेसिक पॉइंट पे चुप रही और उसको कन्विंस नहीं कर पाए। That's all I have to say. आप लोगों को अगर कुछ कहना है तो प्लीज कनेक्ट। I wanted to talk about this maybe tomorrow with more details, with what all that he said, so that there's no ambiguity, because वो सारे पॉइंट्स मेरे पास हैं जो नोटेड है, सारे आर्ग्यूमेंट, चाहे वो आर्ग्यूमेंट विकास सिंह ने रखे हों, चाहे वो आर्ग्यूमेंट सीबीआई ने रखे हों, चाहे वो आर्ग्यूमेंट मुंबई पुलिस ने रखे हों, चाहे वो आर्ग्यूमेंट रिया चक्रवर्ती ने रखे हों, वो सारे आर्ग्यूमेंट है मेरे पास। But I thought I would have spoken about it tomorrow, but then because the topic is such that I thought let me point this out. आपके पास 6 major points थे to say that Riya Chakravarti is deliberately targeting the sisters, deliberately. लेकिन शायद उसको हम प्रूफ ठीक से नहीं कर पाए, और नतीजा ये हुआ कि आज प्रियंका सिंह के बारे में हाई कोर्ट ने, इट्स वेरी शॉकिंग, आई डिडंट नोटिस, अभी मैंने नोटिस किया, उन्होंने रिस्पोंडेंट, उन्होंने पिटिशनर से कुछ और ही स्टेटस चेंज कर दिया, which is very shocking. A victim becomes a culprit. भाई खोया है भाई, she has lost her brother, and today she is being made by Riya Chakravarti as an accused, as a culprit. और ये बात प्रूव करने में रिया चक्रवर्ती के लॉयर सक्सेसफुल भी हो गए। That's all I have to say. If anyone has anything to come and speak up, please speak up. I know all of you are disappointed since yesterday. So are a lot of people. But fact is that this
all these points are going to come up before Supreme Court. और Supreme Court में कम से कम अब गलती सुधारिए, अपने केस को तैयार कीजिए और जाइए और वहां पर बदलिए इस केस को. सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, मैंने कल भी कहा था, चैलेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तुरंत चैलेंज करना चाहिए और इस केस को, इस कोर्ट के ऑर्डर के ऑपरेशन को स्टे करना जरूरी है, वरना इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को करना पड़ेगा. और मोर इंपॉर्टेंटली, द फैमिली विल हैव टू प्रिपेयर द केस very strongly now. You have to be very careful because this is the last chance you have in Supreme Court. यहाँ कोई गलती नहीं हो सकती. और सतीश मान शिंदे, तो obviously he'll be there. He will be ready and go all guns blazing. आपको तैयार होना है. You will have to get a order which is in your favor from Supreme Court. This is the last chance you have. And you have to really prepare very hard. मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस तैयारी में कमी रही, ऐसा मुझे लगता है. लीगली लॉयर्स ने लीगली शायद थोड़ा सा अंडरस्टिमेट कर लिया कि हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, ऐसा दिमाग में बिठा लिया. दैट्स ऑल आई हैव. आई थिंक पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम्स इन कनेक्टिविटी. कैन यू गाइज कनेक्ट? हाँ ठीक है, दैट्स ओके. आई थिंक भवेश इज राइट. We have to, in legal battle, lot of things happen. एक जगह आप जीतते हैं, एक जगह आप हारते हैं, लेकिन ये expected नहीं था. I think family is a victim, and victim cannot become culprits. Yeah? They have lost their brother. Someone has lost his son. Today, it's a very sad state of affair. Anyway, so let's close it then. I don't think anyone is too keen to speak because I can understand the sentiments. It's not about a topic. I think all of you can speak, but I understand. I respect the sentiment. So let's close this. And it was important for me to come and tell you exactly what the order is. I don't know, a lot of people must not have seen it. This is the 43-page order जो मैंने जिसका relevant portion पढ़ के बताया, और ये सारी चीजें discussion में आने वाले वक्त में आने वाली है. So it's a legal battle, always legal battle. You know Supreme Court में क्या हुआ last time, हाई कोर्ट में हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा. सो ये कंटिन्यू हो रहा है और हमको याद रखना पड़ेगा कहां पर क्या कहा गया था. सुप्रीम कोर्ट को लेकर बहुत सारे लोग बोल रहे थे क्या सुप्रीम कोर्ट ने परमिट नहीं किया था, और मैं बार बार बोल रहा था नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर आप फाइल करें भी तो आपको सीबीआई को ट्रांसफर करना पड़ेगा. आई थिंक दैट पॉइंट वाज परमिटेड, बट द बेसिक पॉइंट वाज दिस, दैट रिया चक्रवर्ती वाज क्वाइट. व्हाई वाज शी क्वाइट ऑल दिस वाइल? 83 डेज तक शी वाज क्वाइट. कोई रीजन होगा ना. तब तक तो उनको याद नहीं आया कि मेडिसिन बदल दिया गया. सडनली 83 दिन बाद याद आया, और अब उनके लॉयर ने प्रूफ भी कर दिया कि भाई वो एक प्रेस्क्रिप्शन है जिसके कारण जो है वो विक्टिम जो है वो कल्प्रिट बन जाता है. On that note, I close the session. Think about it. Come back. Speak whenever you want to. We'll be back tomorrow also. The platform is yours. You can come and speak and make your observations and opinion. Thanks a lot for connecting. Stay safe. Stay connected. Come back tomorrow. We'll talk about it. We'll talk about whatever you want. But more importantly, Suraj Dubey case, that's what we are following. We talked about that today. We'll be talking about that tomorrow again at 8 p.m. because that's another case where injustice is happening. I don't know what's going on. एक के बाद एक केसेस हैं. सुशांत सिंह राजपूत, निकिता तोमर, अजीत सिंह परमार, सूरज दुबे एंड रिंकू शर्मा, राहुल राजपूत, दिशा सालियान, कितने सारे केसेस का आप नाम लेंगे. जस्टिस family is asking for justice. I think let's hope that at least we know in Suraj Dubey's case क्या हुआ. सुशांत सिंह राजपूत केस में तो CBI is investigating. So at least there is a CBI investigation. We know CBI is investigating. Let's hope that CBI investigates it properly and we get to know exactly what happened to Sushant Singh Rajput. लेकिन सूरज दुबे केस में तो कोई CBI investigation भी नहीं. So, and he's a naval officer. Let's hope that his family is able to get a CBI inquiry and then let's see where it goes. So tomorrow we shall be back discussing much more. Don't worry, this is all part of legal battle. Supreme Court, the case will be fought better and hopefully they will prepare it much better this time because you cannot take the risk anymore. Thanks a lot for connecting.